جبکہ روزانہ ہماری مسجدوں کو بلڈوزر سے توڑا جاتا ہے. توڑا جا رہا ہے، خبر ہے؟ 500 کتنے مدرسے کو یو پی کے اندر تالا لگا دیا گیا. بعض مدرسے پر بلڈوزر چلا دیے گئے، بعض مدرسے پہ انکوائری بیٹھا دی گئی، مسجدوں پہ بلڈوزر چلا دیا گیا. اور اب تو کل سے انڈیا پاکستان کا جھگڑا ہو گیا ہے نا. انڈیا اس کو مارے تو ہم مرے، پاکستان ہم کو مارے تو ہم مرے، بہر کے مرنا ہم کو ہے. ایسے موقع کے اوپر کم از کم ہم سب لوگ مل کر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجیے. یہ میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں. اور کم از کم نماز کے پابند بن جائیے، گھر کو جنت کا نشان بنائیے. فیصل رحمانی صاحب نے ابھی جو 3 تاریخ کو، اگر آپ لوگ رہے ہوں گے تو سنا ہوگا، انہوں نے ہوائی اڈے سے اعلان کیا تھا کہ امارت شریعہ کی طرف سے ایک اعلان آیا ہے کہ کم از کم ہم لوگ ایمانی قوت کو پیدا کرنے کے لیے ہفتے میں جمعرات کے روز روزہ رکھیں. آج میرا بھی ارادہ تھا روزہ رکھنے کا، لیکن میں جان بوجھ کے توڑ کے آیا ہوں تاکہ آپ لوگ کے سامنے بولنا بھی ہے اور آج آپ لوگوں سے وعدہ بھی کروانا ہے انشاءاللہ. تو جو ہمارے بڑوں کی ہدایت ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ عمل کریں گے. ہاتھ اٹھا کے بولیے انشاءاللہ. ارے آپ لوگ ہاتھ اٹھائیے بھائی، اس میں شرمانے کا نہیں مسئلہ، شرمائیے بالکل نہیں، ہاتھ اٹھائیے. بلکہ فیصل رحمانی صاحب نے تو بسا اوقات لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 30 سیکنڈ کے لیے ہنسیے. کیا تھا بچھوانا میں بھی کیا تھا، ہمیں ہنسنا چاہیے. ہمارا دل کا جو دکھڑا ہے نا یہ دور ہوگا تو ہم ہنسیں کھیلیں. دنیا میں کوئی ایسی مصیبت نہیں جو ہمارے سر پہ موجود نہیں ہے، تو کبھی کبھی ہنسیے بھی. تو انشاءاللہ ہم لوگ ہر جمعرات کو روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. اور آج سے ہی توبہ کر کے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ہم اپنے بچوں کی اور بچوں کی حاضری لیں گے انشاءاللہ. چلیے، تیسرا نمبر بھی ہمارا طے ہو چکا ہے نا. 3 باتیں آ گئی ہیں. آپ کے بچوں کا شکریہ ادا ہو گیا. دوسرا، فیس کی تاریخ کا بھی آپ کو پتہ چل گیا جو 5 تاریخ تک ہر حال میں جمع کر دینا ہے. تیسرا، ہاسٹل کے بچوں کے لیے لڑکا یا لڑکیوں کی بات بھی آ گئی. چوتھا نمبر بھی آ ہی چکا ہے کہ آپ کو جو بھی رابطہ کرنا ہوگا وہ صرف ہم سے کریں گے. اس کے لیے ہم نے ایک نمبر رجسٹر کرایا جو نیا نمبر آپ کو دیں گے انشاءاللہ، جو آپ کے بچوں کے آئی ڈی پر چھپ جائے گا. عرفان بھائی کو میں نے ذمہ داری دیا ہے کہ آپ ریسیور کا انتظام کروائیے، تاکہ جب ریسیور آ جائے گا انشاءاللہ، جبکہ پرانا ماڈل ہے، ریسیور آ جائے گا صبح سے لے کر 1 بجے تک اور مغرب سے لے کر کے 8-9 بجے رات تک جو بھی بات کرنا ہوگا بھائی ہم سے آپ کیوں بات کیجیے گا. مدرسے کا نمبر ہے، مدرسے پہ بات کیجیے. کسی استاذ کو آپ کیوں بولیے گا؟ اس لیے کہ بھائی ہم کتنے اچھے ہیں، آپ ہم پہ وشواس مت کیجیے، ہم لوگ بہت خراب آدمی ہیں. سیدھا مسئلہ ہے، نہ آپ ہم پہ وشواس کیجیے نہ ہم آپ پہ کریں گے. اگر ایک طرف مرد ہے تو دوسری طرف بھی مرد ہے، ایک طرف عورت ہے تو دوسری طرف بھی عورت ہے. کسی کے پرسنل نمبر پر کوئی رابطہ نہیں. اور اگر آپ رابطہ کرتے ہیں اور کوئی شکایت آتی ہے تو آج 8 تاریخ یعنی 8 مئی ہے نا، 8 مئی سے یہ ادارہ یا ادارے کے ذمہ دار اس کی ذمہ داری نہیں لیں گے. یہ گارجین سمجھے اس کا میٹر ہے بھائی. اس لیے کہ بہت زیادہ استاد کی شکایت کی جائے تو استاد چلا جائے گا اور کیا ہوگا. لیکن آپ کے بچے نہیں جائیں گے، آپ کے بچے کی بدنامی یہی رہے گی، ہے نا. تو یہ نمبر سارے لوگوں کو معلوم ہے، پلس ایک ایم آئی ڈی پہ چھپا دیں گے. اور پرانا نمبر تو ہے ہی، اس کے لیے ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ گروپ میں ہے کہ میں نے ایک صاحب کو اپنے مدرس کو گروپ ایڈمن بنا رکھا تھا، میں نے کل اس کو بھی ہٹا دیا ہے. اب تنہا اس گروپ کا مالک میں ہوں. دیکھا ہوگا جن لوگوں کا جڑا ہوا ہے میں نے ہٹا دیا ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی اس کو استعمال نہیں کرے گا. تو یہ رابطہ کے لیے اصول و ضوابط ہو گئی. اور 5واں نمبر بھی آپ کے سامنے آ گیا، لیکن میں دوہرا دیتا ہوں کہ آپ نے اس جامعہ کو جہاں آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اب تک میں کیا دیا ہے. یہ سوچیے، اپنے دل سے پوچھیے 2 منٹ میں ہم نے کیا دیا. کیوں؟ اگر آپ نے پڑھانے کا 300 روپیہ دیا تو ایک مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں. عربی دوم کلاس کے اندر، یہ سن لیجیے پھر سوچنے میں مدد ملے گی. عربی دوم کلاس کے اندر 13 بچے ہیں، 12-13 بچے ہیں. 12-13 میں سے تو 3-4 فری کے ہیں، چلو فری کو ہٹا دو. 12-13 بچے نے ہم کو 300 روپیہ دیا، فیس تو 300 ہے، تو 12 36. عربی اول کے اندر بھی 12-13 بچے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ کلاس ہے کہ جیسے جیسے ہی کلاس اوپر جائے گا بچے گھٹتے چلے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ پورا ملکی بنتے بنتے تو 2 بچہ بچ جائے، ہو سکتا ہے. کیوں؟
ये मदरसा हमारे इलाके में ऐसा है नहीं कि चलो भाई इस मदरसे से छोड़ दिया दूसरी जगह चले जाओ, दूसरी का छोड़ के यहाँ आ जाए। ये वही बच्चे पढ़ेंगे जो अल्ली बात से पढ़ते हुए जाएंगे। तो जैसे जैसे क्लास ऊपर होगी बच्चों की तादाद घटती जाएगी, उस्ताद की तनख्वाह बढ़ती चली जाएगी। और ये 300 रुपया फीस, ये तीसरा साल है, 3 साल से हमने फीस नहीं बढ़ाया है। तो 12 या 36, दूसरा क्लास भी जोड़ दीजिए तो 12 या 36, और फारसी में भी 12 बच्चे हैं, सब क्लास में 12-13 बच्चे हैं। और टीचर के ताल्लुक से मैंने कहा कि 3 टीचर की ज़रूरत है, हम 2 टीचर मिलकर खींच रहे हैं। अगर 8 ही 10 हज़ार रुपया तनख्वाह दें तो क्या ये अरबी वाले बच्चों का आपके फीस से तनख्वाह पूरा हो जाएगा? जबकि मैं आपके सामने एक नज़रिया पेश करता हूँ, ये सुनने की बात है। ये जो पिछले साल का हमारे पास सामना है, पिछले साल हमारे पास फारसी के अंदर जो बच्चा इस साल अरबी अव्वल में गया है, पिछले साल 18 बच्चे थे, जिनमें से 3 बच्चों का नाम कट चुका, 15 बच्चे बचे। 15 में से 2 बच्चे का नाम कटा, अभी 12-13 मैंने आपको बताया है। इस 12-13 में से हमारे पास 1 2 3 4 5 बच्चे इमदादी है। 12-13 में से 5 बच्चे फ्री है। जो सबसे बड़ी क्लास है उसके अंदर हमारे पास पिछले साल 14 बच्चे थे, जिसमें से 13 बच्चे बच गए। इस साल भी 12-13 का मैंने नाम लिया है, ठीक है। इस 12-13 में से 1 2 3 4 बच्चे इस क्लास में भी फ्री है। क्या इन तमाम बच्चे जो फ्री हैं, अब फ्री को खत्म कर दीजिए, सबने पैसा दे दिया, क्या हमारे उस्ताद की तनख्वाह पूरी हो गई? तो जब उस्ताद की तनख्वाह हमारे नहीं पूरी हुई तो भाई मैं तो अपने बेटा बेटी को नहीं पढ़ा सका। जैसे आपका बेटा बेटी है, सब हमारा बेटा बेटी है। तो हमने तो दिल्ली मुंबई का सफर किया आपके बच्चों के लिए भीख मांगा, आपने क्या दिया ये अब आप गौर कीजिए। और अगर आप मेरा साथ नहीं दीजिएगा तो पहले आपने सुना है कि हमारे पास 3-4 हज़ार रुपया भी नहीं कि हम बच्चों को पढ़ा सकें। तो आज तक जो ये मदरसा है 10 लाख रुपए के कर्ज में, जिसमें से 7 लाख रुपया तो बैंक से खाली हो गया है, 7 लाख रुपया बैंक से खाली हो चुका। क्या ये कर्ज बढ़ता रहे तो कितना दिन हम चला पाएंगे? तो इसके ऊपर भी गौर करना है, और ये आपके ऊपर है, मेरे लिए कोई नहीं। अगर आप लोग चाहेंगे, दिल करे, तो अरबी वाले बच्चों का अगर आप चाहें, फिर से सुन लीजिए, अगर आप चाहें तो फीस को बढ़ाया जाएगा, और अगर आप नहीं चाहेंगे तो नहीं बढ़ाया जाएगा। ये भी ऐलान है, इसलिए कि जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ जुबानी नहीं, दिल से बोल रहा हूँ, सीधा मसला है। जिन बच्चों को मैंने फ्री पढ़ाया है शुरू से आज तक, मैंने ये नहीं कहा है कि अब तुम्हारा खर्चा बढ़ गया फीस दे दो, आज भी वो फ्री है, इंशाल्लाह क़यामत तक फ्री रहेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर गौर कीजिए कि हमने क्या दिया। मैं पिछले साल गया था एक मदरसे में इम्तिहान लेने, जहाँ से बच्चियाँ फारिग हो रही थी। तो जहाँ मैंने बुखारी मुस्लिम का इम्तिहान लिया, वहाँ मैंने बच्चों से पूछा कि तुमने इस मदरसे को क्या दिया। सवाल है ना, एक बच्चा 5 साल पढ़ा और यहाँ से चला गया, तुमने इस मदरसे के अंदर क्या निशानी छोड़ा है? तो कुछ नहीं। तो मैंने सारे बच्चों से कहा कि अब चलो, दूसरा सवाल ये है कि तुमको 5 साल के अंदर, जो 5 7 10 उस्ताद है, कभी 5 साल के अंदर तुम्हारी जिंदगी में ऐसी नौबत आई कि जिस दिन तुम अपने किसी उस्ताद से बहुत खुश रही हो, या आपकी जिंदगी के अंदर कभी कोई ऐसी बात आई कि जिस दिन आप अपने घर के अंदर बहुत खुश रहे हो और बगैर कहे हुए अपने अपने माँ का या बाप का पाँव हाथ दबाया हो, तेल लगाया हो, खिदमत किया हो? या कभी आप बहुत खुश रहे हो और अल्लाह के सामने नहा धो करके नया नवेला कपड़ा पहन के आज तौबा ही किया अपने गुनाह से? ये सब सवाल किया था मैंने बच्चों से, है ना भाई। हमारी जिंदगी में कभी ऐसा आना चाहिए कि नहीं कि जितने बच्चों के माँ बाप की खिदमत करें। माँ बाप की भी जिंदगी में कभी ऐसा दिन आना चाहिए कि जब उसके घर का माहौल अच्छा हो तो बच्चों को उस दिन अच्छा खाना बनवा दे, बच्चों को उस दिन अच्छा कपड़ा पहना दे, चलो आज तुमको घुमाने ले चलते हैं। ये माँ बाप अच्छे नहीं है जो माँ बाप रोजाना अपनी बीवियों को, बेटियों को घर में पैक करके रखते, ये भी अच्छे नहीं है। आपके दिल के अंदर ईद में, बकरा ईद में, खुशी के मौके पर ये आना चाहिए कि आप अपने पूरी फैमिली को घुमाने ले जाएं। ये सुन्नत है, सिर्फ खिलाना पिलाना कपड़ा पहनाना सुन्नत नहीं है। और इंशाल्लाह अगर आप लोग साथ देंगे तो हम लोग भी ये काम करेंगे, जिसको एजुकेशनल टूर बोलते हैं। वहाँ तारीख बताई जाती है, सिखाया जाता है, यानी सिखाया जाता है। हम लोग को भी हमारे उस्ताद, जब मैं मौलाना बन गया था उसके बाद हमारे उस्ताद चिड़िया म्यूजियम में ले गए, हम लोग हमारे चिड़ियाघर हैदराबाद के अंदर चिड़ियाघर ले गए कि चलो तुम लोगों की कम मुहर्रम की छुट्टी थी, पूरा दिन रोजा रखे हो, चलो
शाम में आके इफ्तार करोगे। बहरकैफ तो ये हालात है। तो हम लोग तो जाते हैं शहरों में, दिल्ली मुंबई के हालात कारखाने के कितने हैं ये आप लोग को अच्छे से मालूम, ये हमको नहीं पता है, ये आपको मालूम है। तो इसका खर्च कैसे पूरा होगा इसके ऊपर गौर करना है हम सभी लोग को इंशाअल्लाह। अगले एजेंडे पे हम चलते हैं कि आपने इस जामिया को कहा दिया, ये आप लोग अपने तौर पे सोच लीजिएगा। इंशाअल्लाह मैंने पिछले साल बात रखी थी जिसका मैंने मदरसे में जलसे में भी कहा था, इसलिए कि अगर आप मेरी ज़िंदगी के साथ एहसान कीजिएगा तो याद रखिए कि जब तक ये मदरसा नहीं था मैंने कभी नहीं कहा था, लेकिन अगर आपने इस मदरसे के साथ एहसान किया तो क़यामत तक मैं याद रखने वाला आदमी हूँ। कलकत्ता के अंदर मैंने इमामत किया है तो 4,000 मेरी तनख्वाह थी, और उस 4,000 में भी 3,000 मस्जिद से मिलना था, और बकिया जो 2,500 था वो ममता बनर्जी गवर्नमेंट देती है। तो लोगों ने काट लिया था कि भाई आप तो गवर्नमेंट दे रही है, तो इससे मिला करके 5-4.5 तनख्वाह हो गई। तो जाहिर सी बात है वहाँ का एफिडेविट वगैरह बनेगा, दायरा सारे बनेगा, अकाउंट वगैरह खुलेगा, कुल मिला करके हमारी तनख्वाह वो आ नहीं सकी ममता बनर्जी वाली। तो एक साहब हैं समस्तीपुर के शमशेर भाई, जिन्होंने अपनी कमेटी से छुपा करके हमको कहा कि 1,000 रुपया हर महीने आपको दूंगा, लेकिन जब तक आप रहिएगा कमेटी को नहीं बोलिएगा, वरना इमाम की तनख्वाह लोगों को बड़े आँख लगती है, आप छुपा करके लीजिएगा। हर महीने वो देते थे। ये बतौर शुक्र के मैं आपको बताऊं कि जब भी अल्लाह ने तन्हाई में हमको इबादत का मौका दिया, जब भी मैं अल्लाह के सामने सजदा किया, जहाँ हज़ारों लोगों को याद किया, शमशेर भाई को आज तक मैं भूला नहीं। जबकि उन्होंने साथ ही 8 महीना हमको 7-8 हज़ार दिया, अरे 10,000 दे दिया, लेकिन 2014 से लेकर 2025 से 11 साल आज तक उसको भूला नहीं किया। यही चीज़ मैंने आपसे कहा था कि आप कम अज कम साल में 1,000 रुपया दीजिए मदरसे को, एक साल में 12 महीना बनता है, 100 रुपया से कम मांग रहा हूँ मैं आपसे। जो बातें मैंने पिछले साल 2 फरवरी को मीटिंग के अंदर रखी थी, छोटी बच्ची है, अब हालांकि उस नाम के 2 बच्ची हैं, एक तो रेदा फरीदा या रेदा फातिमा, 2 बच्ची है, थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ दोनों को पहचानने में। उनकी वालदा यहीं पर आई और उसी वक्त वो 1,000 रुपया दे के चली गई, जिसका एहसान है इस मदरसे पर। और जब भी इस मदरसे के अंदर पुख्ता इमारत बनेगी, उस औरत का नाम समझिए सोने के कलम से लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, जबकि उससे ज़्यादा देने वाले लोग होंगे। दिया भी है इस मदरसे में भी, ऐसे ऐसे लोगों ने भगवतीपुर से आकर के पैसा दिया है कि मैं क्या बताऊं। लेकिन उसी भगवतीपुर के लोगों ने आकर के मैं पैसा दिया तो मैं वापस भी कर दिया हूँ। ये भी ध्यान में रखिए कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ देने के लिए तो मैं मोहताज नहीं हूँ। मैंने इसी भगवतीपुर के लोगों का पैसा वापस कर दिया है कि आप ले जाइए, आपका पैसा नहीं चाहिए मुझे। क्यों? इसलिए कि अपना वो मिजाज ही नहीं है। हमें लगना चाहिए कि आप दे रहे हैं तो आपके दिल में अखलास है। मेरा दिल नहीं माना, जबकि बेहतरीन कुरमा रोटी उसको बचा के खिलाया यहाँ, उसके बाद उन्होंने देना चाहा तो मैंने कहा नहीं आपका पैसा नहीं चाहिए, आप पैसा ले जाइए। फिर जब यहाँ पे ट्रैक्टर भर रहा था, टेबल टूट गया, ट्रैक्टर का वही पलट गया, तो फिर मैं उस आदमी को कहा कि आप टेबल का एक इंतजाम कर दीजिए। तो जो टेबल से पानी पी रहे हैं वही टेबल उसी का हेड लगाया हुआ है, वही आदमी लगाया। तो भाई मैं इस तरह का। अब खुलासा ये है कि उन्होंने 1,000 रुपया दिया। आपने सुना अगर याद होगा तो मैं माइक के ऊपर भी कहा था, और जब जब ऐसी मीटिंग होती रहेगी उसका नाम आता रहेगा। क्यों? अब वो बुनियाद में पड़ गया। बुनियाद जितनी मजबूत होगी इमारत ऊपर चली जाएगी, बुनियाद हिल नहीं सकता। वो पहली औरत होगी इस जामिअतुल मोहसिनात के लिए, ये पहली औरत होगी। हमारी दरख्वास्त है आपसे, हमारी दरख्वास्त है आपसे कि अगर आप लोग भी 1,000 रुपया करके हमें दे दें, 1,100 करके दे दें एक बार, तो कम से कम 1.25 लाख रुपया हमारे पास जमा हो जाएगा। एक ऐसा 1.25 लाख रुपया जमा होगा जिसके लिए कोई मेहनत नहीं होगी, कोई मेहनत। और अगर ये हमको इस महीने में जमा हो जाए तो पिछले अगले महीने में हम बुनियाद डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते? तो क्या इंशाल्लाह इसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे? इंशाल्लाह ये आप लोगों को, अगर आप लोग आज करेंगे मैं कल बुनियाद डालूंगा, कल करेंगे हम परसों डालेंगे, ठीक है? बहरकैफ तो कुछ ना कुछ मदरसे का हिस्सा निकालिए। हम जहाँ सबको देते हैं भाई, जहाँ आपके बच्चे पढ़ते वहाँ क्या देते हैं, ये आपको सोचना है। मैं कब तक कहूँ? हालांकि मैं नाम लिए बगैर बाजार के एक आदमी का जिक्र करूँ,
उन्होंने हमसे कहा कि आप किसी उस्ताद को बाजार वगैरह के लिए रसीद दीजिए ताकि हम उनको चंदा दें। आपके मस्जिद के जो कारी शौकत साहब यहाँ पढ़ाते, उन्होंने 2-3 बार हमको फ़ोन किया कि आप रसीद दीजिए ना, लोग चंदा देने के लिए तैयार है। मैंने कहा नहीं, मैंने रसीद नहीं दिया, पूछिए कारी शौकत साहब से। और जो गांव के अपने बाजार के जो 5,000, 7,000, 2,000 चंदा दे सकते हैं, उन लोगों ने कहा कि आप रसीद दीजिए, हम लोग चंदा देंगे। तो भी मैंने किसी उस्ताद को रसीद नहीं दी। क्यों? अगर मैं भगवतीपुर के लोगों से जाऊं मांगने तो ये मेरे लिए शर्म की बात, उसको पता नहीं कि मदरसा है। अगर मैं परसा के लोगों को जाऊं कहने कि आप चंदा दीजिए तो ये शर्म की बात है। इसी तरीके से हमारे लिए शर्म की बात है आप लोगों के लिए भी है कि जिनके गार्जियन उनको मैं कहूँ, हाँ मैं उनसे नहीं कह सकता। ये आपको देखना है, जहाँ आप अपने बच्चों का खिलाने पिलाने सारी बातों का इंतजाम करें, इसका भी इंतजाम कीजिए। चलिए आगे वाले की बल्कि बात आ चुकी है, बच्चों का 10वीं में दाखिला स्कूल के अंदर। ये बात आ ही चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह कि 20 बच्चों का दाखिला करवा रहे हैं। आप लोग इत्मीनान रखें और स्कूल के नाम पे कभी छुट्टी मत लीजिए। स्कूल का माहौल कितना अच्छा है बताने की ज़रूरत नहीं। जबकि इस बीच में एक बात और बता दें, यहाँ पे भी उस गार्जियन के नाना मामू लोग बैठे हैं। बाज़ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको महीना में और साल में जो स्कूल में पैसा मिलता है लिबास पोशाक का, वो भी हम दिलवा देते हैं बच्चों। ऐसे बच्चे और गार्जियन यहाँ मौजूद हैं जिनको मैं देख रहा हूँ, लेकिन उसके लिए विश्वास करना पड़ेगा। कल लोग यही कह दिएगा कि यो सरकारी बन गया तो काम नहीं चलेगा, तब नहीं होगा काम। ठीक है, चलिए इसी के अंदर गैर हाजिर की सूरत, अगर आपके बच्चे असातिज़ा को पिछले साल भी कहा आज भी कहा